السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ محترم حاضرین، قابل صد تکریم سامعین مکرم، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، پس پردہ ملت اسلامیہ کی پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ آج کے اس درس میں ہم ایک اہم مسئلے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ مسئلہ ہے وہ کون سے اعذار ایسے ہیں جن کے سبب انسان کو رمضان کے روزے نہ رکھنے کی رخصت دی گئی، وہ کون سا عذر ہے۔ تو معذوروں کے صیام سے متعلق کئی مسائل ہیں، لیکن اس سے قبل چند بنیادی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں اسلام کی اور ایمان کی نعمت ہے۔ اسلام آسانی اور سہولت کا دین ہے۔ اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں، آپ ہر حکم پر اگر غور کریں تو اس کے اندر آپ کو آسانی ہی آسانی نظر آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا حکم شریعت کے اندر نہیں نازل کیا ہے جس کا انسان متحمل نہ ہو، یعنی جو انسان کر نہ سکے یا جو انسان کے پہنچ سے باہر ہو۔ مثال کے طور پر رمضان کے مہینے کا روزہ، اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کو بیک وقت فرض نہیں قرار دیا، بلکہ کئی مرحلے میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر روزے کو فرض کیا ہے تاکہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں اور اس کی ادائیگی بہت زیادہ تکلیف اور مشقت کے شکار نہ ہو۔ کئی مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا، جیسا کہ پچھلے دروس میں ہم یہ بات جان چکے ہیں۔ مزید یہ کہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں میں صرف ایک مہینے کو روزے کے لیے متعین کیا ہے، جو سال کے دنوں کے مقابلے میں انتہائی غیر معمولی۔ سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینے آپ کے لیے رخصت ہے کھانے پینے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ آپ کے لیے روزہ فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہی ہیں۔ اسلام میں رحمت اور سہولت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اسلام نے صرف روزوں کو فرض ہی نہیں قرار دیا، بلکہ اسلام نے اس بارے میں لوگوں کی حالت کی رعایت کی ہے۔ مثال کے طور پر بیمار ہے اگر کوئی، زیادہ بیمار ہے، ان لوگوں سے رمضان کے روزے کو معاف کر دیا ہے اور حکم یہ دیا کہ یہ لوگ حالت سفر میں، حالت بیماری میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ بعد میں جب شفا یاب ہو جائیں یا مقیم ہو جائیں تو یہ لوگ روزہ رکھیں، بعد میں اس کی قضا کریں۔ ایسے ہی وہ شخص جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو، نہیں رکھ سکتا، بیماری دائمی بیماری ہے جس کی شفا کی کوئی امید نہیں ہے، تو شریعت نے اس کے لیے یہ سہولت فراہم کی کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اپنی طرف سے کسی ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلائے۔ مزید یہ کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے جو روزے انسان کے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی قضا کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم نہیں دیا کہ رمضان کے فوراً بعد آپ اس کی قضا کریں، یا اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو لگاتار پے در پہ اس کو قضا کو پورا کرو، بلکہ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے سہولت رکھی ہے۔ آپ کے اوپر ہے، اگر آپ لگاتار اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں تو آپ کیجئے، لیکن اگر آپ
ناغا کر کے ایک ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھیں. یہ بھی شریعت اسلامیہ کے اندر سہولت کا ایک عظیم مظہر انسان کے سامنے نظر آتا ہے. جیسا کہ میں نے بتلایا کہ آج کے درس میں ہم سیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے شریعت میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. پہلے نمبر پر مریض. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بیمار کو روزہ رکھنے میں مشقت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. البتہ اگر بیماری معمولی ہو جس میں روزہ رکھنے سے کوئی مشقت انسان کو نہ ہو تو ایسے بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جس بیمار کو روزہ رکھنے میں پریشانی اور دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو. مریض کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے وہ مریض جسے افاقہ یا شفا یابی کی امید ہو، جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا کہ چند دن کے بعد آپ شفا یاب ہو جائیں گے. ایسے آدمی کے بارے میں شریعت نے کیا حکم دیا؟ ایسے آدمی کے بارے میں شریعت نے حکم یہ دیا کہ آپ بیماری کے پیریڈ میں روزہ نہ رکھیں. ہاں، جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو آپ کے جو روزے چھوٹے ہیں بیماری کی وجہ سے آپ ان روزوں کی قضا کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. ہاں، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور اس سے روزے چھوٹ گئے ہوں تو کیا کرے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. بعد کے دنوں میں، رمضان کے بعد کے جو مہینے ہیں ان مہینوں میں اس کو پورا کرے. قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. جو بندہ رمضان کے مہینے کو پائے اسے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے. ہاں، جو بندہ بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرنی چاہیے. یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے، ماہ رمضان میں وہ بیمار جس کی شفا یابی کی امید ہے اس کی 3 حالتیں. پہلی حالت یہ ہے جس آدمی کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہ ہو اور نہ ہی اس کے رکھنے سے اسے کوئی نقصان پہنچتا ہو تو ایسے شخص کے اوپر رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے. کون؟ وہ آدمی جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہ ہو، روزہ رکھ رہا ہے، اس کی بیماری پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو کیا ہے ایسے بندے کے لیے؟ ایسے بندے کے لیے شریعت نے حکم یہ دیا کہ آپ کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ایسی عذر مقبول نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ ترک کر سکتا ہے. مثال کے طور پر دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے، جسم کے کسی دوسرے حصے میں درد ہے تو یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی. سردی اور زکام ہے معمولی، کیا کرے آدمی؟ سوچتا ہے کہ مریض کے بارے میں رخصت ہے تو ہمیں سردی اور زکام ہے، لاؤ ہم روزہ چھوڑ دیتے. نہیں، ایسے بندے کے لیے روزہ چھوڑنا درست نہیں، جائز نہیں ہے. دوسرا وہ شخص جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو لیکن اس کے رکھنے سے اسے نقصان نہیں پہنچتا ہے. روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے لیکن اگر وہ بندہ روزہ رکھے تو اسے کچھ دقت اور پریشانی نہیں پہنچتی ہے تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ عمل ہے. البتہ اگر وہ بندہ ایسی حالت میں روزہ چھوڑ دے تو یہی سنت پر عمل کرنا ہے، سنت پر یہی عمل کرنا ہے. دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیته. اللہ رب العالمین اپنی رخصتوں پر عمل کرنا پسند کرتا ہے. شریعت نے رخصت دیا ہے، آپ بیمار ہیں، آپ روزہ رکھیں گے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کے لیے شریعت نے رخصت دیا ہے کہ آپ روزہ کو ترک کر دیں، رمضان کے بعد اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں. تو اللہ نے ہم کو رخصت دیا ہے اور اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی رخصت اور چھوٹ پر عمل کریں.
قرآن کریم اور تیسری حالت یہ ہے روزہ رکھنے سے اس کو نقصان پہنچتا ہے. بندہ بیمار ہے, بہت سخت بیمار ہے, مثال کے طور پر کینسر کا مریض ہے, ٹی بی کا مریض ہے, ایسے شخص کے لیے اگر وہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو اسے دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو شریعت نے ایسے مریض کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, روزہ نہ رکھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 29 کے اندر کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, اپنے آپ کو قتل نہ کرو, یقیناً اللہ رب العالمین تم پر بڑا ہی مہربان ہے. تو 3 حالتیں ہم جان چکے ہیں اور اس کا حکم بھی ہمیں معلوم ہو گیا. دوسرا مریض کی دوسری قسم یہ ہے جسے شفا کی امید نہ ہو بلکہ وہ مستقل طور پر دائمی بیماری میں مبتلا ہو. تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ وہ آدمی روزہ نہ رکھے بلکہ کیا کرے, اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم کا اس بارے میں اجماع ہے کہ ایسا بوڑھا شخص جو بہت زیادہ عمر کو پہنچ چکا ہو, بوڑھا ہو گیا ہے, جو روزہ رکھنے سے عاجز اور پریشان ہے, وہ روزہ چھوڑ دے. اس بارے میں علماء کا اجماع ہے کہ شریعت نے اسے رخصت دیا ہے کہ روزہ نہ رکھے. یا ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ شفا یابی کی کوئی امید ہی نہیں ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا اس کا کوئی علاج یعنی شفا کی کوئی امید نہیں ہے, ایسے بندے کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ کیا کرے, اپنی طرف سے کسی ایک مسکین کو کھلائے. دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ رب العالمین کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے. ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو شریعت نے ہمیں کہا آپ کے اندر طاقت نہیں ہے, آپ روزہ مت رکھیں, ہاں اپنی طرف سے کسی مسکین کو کھانا ضرور کھلائیں, یہ فدیہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا تمہارے اندر طاقت ہو اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرو, اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہو. تو میں نے کہا ایسے مریض کے اوپر ضروری ہے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں جب اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا تھا اس وقت ایک آپشن یہ بھی دیا تھا, یاد ہوگا آپ لوگوں کو, آپشن یہ بھی دیا تھا کہ آپ روزہ رکھیں یا اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. یہ آپشن تھا. پتہ یہ چلا روزے کا بدل کیا ہے, مسکین کو کھانا کھلانا ہے. یہاں بندہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس کا بدل یہ ہے کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے. تو سورہ بقرہ کی 286 نمبر کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرة لا يستطيعان ان يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسکینا. بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے انہیں چاہیے کہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں, ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَمَا كَبَرَ عَامًا أَوْ آمَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرًا. کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ اسی طرح سے بوڑھا آدمی جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ اپنی طرف سے کھلائے. دلیل کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے, بزرگ ہو گئے تھے, بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے. تو کیا کیا انہوں نے 1 سال یا 2 سال تک یعنی 2 سال رمضان کی روزہ وہ نہیں رکھ سکے تو انہوں نے کیا کیا, ہر روزے کے بدلے گوشت روٹی کی شکل میں, گوشت اور روٹی کی شکل میں ہر دن کے بدلے انہوں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا. گوشت روٹی کھلانا ہے, گوشت روٹی. ہاں اہم مسئلہ یہ ہے کتنی مقدار میں ہمیں, اگر ہم نہیں کھلا رہے ہیں تو کیا کرنا ہے, ہمیں کچھ فدیہ دینا ہے غلے کی شکل میں. کتنا دینا ہے
शरीयत ने कहा निस्फ सा। निस्फ सा कहते हैं 1.5 किलो। कितना? 1.5 किलो तकरीबन आपको गल्ला देना है, ये हम जान चुके। अब खाना कैसे कोई खिलाए? खाना अगर खिलाना चाहते हैं तो खाना हम कैसे खिलाएं? उसकी 2 शक्लें हैं। नंबर 1, जितने दिनों का रोजा मरीज के जिम्मे हो उतने दिनों तक का खाना तैयार कर ले, फुकरा और मसाकीन को खाने पर बुलाए और सबको बैठ वक्त खिला दे। मिसाल के तौर पर पूरे रमजान में 7 दिन का रोजा हमसे छूटा हुआ है, हमें उसकी नहीं, मरीज की तरफ से 7 दिन, मिसाल के तौर पर 7 दिन आखिर में बीमार हुआ, आखिरी मरहले में, और ऐसी बीमारी पकड़ गई उसको कि वो फिर अब शिफा नहीं हो सकता, 7 दिन मिसाल के तौर पर छूटा उसका, तो उसका जो फिदिया देना है 7 दिन 7 मिस्कीन का खाना बनाए एक दिन, और उसी दिन 7 मिस्कीन को बुला करके अपने घर खिला दी। ये पहली सूरत। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर बूढ़ा मर्द हो या बूढ़ी औरत हो जिसके लिए रोजा रखना मुश्किल हो, जो रोजा ना रख सके, उसके लिए जरूरी है हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएं या उसे अपने साथ दस्तरखान में शामिल करें, या हर मिस्कीन को हर दिन के बदले 1.5 किलो तकरीबन खजूर, चावल या गेहूं दे दें। ये किसका मौक़िफ़ है? शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह का मौक़िफ़। दूसरी सूरत ये है, जितने दिन रोजे उसके जिम्मे हो उतने दिन का गल्ला जो समाज में ज्यादा तौर पर इस्तेमाल होता, हमारे यहाँ क्या है? गेहूं और चावल। तो गेहूं और चावल में से हम जो चाहें उसको हम हर दिन के बदले 1.5 किलो के हिसाब से हम वजन करके किसी गरीब और मिस्कीन के यहाँ पहुंचा दें। ये दूसरी सूरत। अहम नुकता यहां पर यह है, रोजे से पहले फिदिया देना जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे अब्बू हैं, अम्मी हैं, ताकत नहीं है रोजा रखने की, बीमारी ऐसी है कि शिफायाबी की उम्मीद नहीं, अब पूरा 300 रोजा नहीं रख सकते, तो क्या किया? समाज में लोग सोचते हैं कि चलो रमजान से पहले ही उसका फिदिया निकालनी है। गलत। फिदिया निकालना ये गलत है, नाजायज है। नाजायज है। क्यों नाजायज है? इसलिए कि ये रमजान के रोजों के बदले में है। तो हम जैसे रमजान का रोजा शाबान के महीने में नहीं रख सकते, ऐसे ही रमजान के छूटे हुए रोजों का फिदिया शाबान के महीने में नहीं दे सकते। ये है तरीका। नंबर 2, जिन्हें फिदिया दिया जाएगा वो मिस्कीन हो, फकीर हो, मिस्कीन फकीर, या वो लोग जो जिनके बारे में शरीयत ने कहा है कि ये ज़कात लेने के मुस्तहिकीन में से उनको दिया जाएगा। तीसरी चीज सबसे अहम आप लोगों के लिए क्या है? फिदिया में रुपया और पैसा देना जायज नहीं है। मौलवी साहब खरीद के हम खाते हैं, खरीद के आप गल्ला दीजिए। रुपया और पैसा फिदिया की शक्ल में देना जायज नहीं है। आपका जो आम खुराक है उस खुराक में से आप हर दिन के बदले 1.5 किलो गल्ला आप पूरा इकट्ठा कर लें और फिर उसी हिसाब से आप गुरबा और मसाकिन के अंदर तकसीम कर दें। पैसा देना जायज नहीं है। कान खोल के सुन लिए। चलिए दलील क्या है 1.5 किलो देने की, वो भी देख लें। सही बुखारी की 1816 नंबर की रिवायत है। काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औ अतइम सित्तत मसाकीना लिकुल्लि मिस्कीनिन निस्फु साइन मिन तआमिन। हर मिस्कीन को कितना देना है? निस्फ सा, यानी 1.5 किलो। कहां है हदीस? ये बुखारी की। इसमें पैसे का जिक्र किया गया? नहीं जिक्र किया गया। क्या अल्लाह के रसूल के जमाने में करेंसी का रिवाज था? जी रिवाज था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसके बारे में कहा? नहीं कहा। इसलिए अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के शहदाई हैं तो हमें नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए गल्ला ही निकालना चाहिए। रुपया पैसा निकालने से परहेज करना चाहिए। रुपया पैसा अगर आप निकालते हैं तो वो माना नहीं जाएगा, वो माना नहीं जाएगा। ऐसे ही एक बहुत ही खतरनाक मसला आएगा इंशाअल्लाह कल के दर्स में। दूसरा है मुसाफिर। मुसाफिर के लिए सफर में रोजा छोड़ना जायज है।
کون سے مسافر کے لیے؟ وہ مسافر جو جس کے لیے شریعت نے نماز قصر جائز رکھی ہے، یعنی جو سفر میں نماز کو قصر کر کے پڑھ سکتا ہے اس کے لیے سفر میں روزہ کو ترک کرنا شریعت نے اس کے لیے جائز کرا دیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسافت قصر سے متعلق یعنی کتنی ڈسٹینس ہونی چاہیے جس میں ایک انسان اپنی نماز کو قصر کی صورت میں پڑھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس مسئلے میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ سماج کے لوگ جسے سفر کہتے ہوں، کوئی دلدار نگر بکسر جانے کو سفر کہتا ہے؟ کوئی غازی پور جانے کو کہے گا کہ وہ سفر میں گئے ہوئے ہیں؟ نہیں۔ ہاں بنارس سے جایا تو آدمی کہتا ہے ہاں سفر میں گئے، باہر سفر میں گئے، یا اور کہیں اس سے دور جا رہا ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ سفر میں گئے۔ تو جسے عرف میں سفر کہا جاتا ہو اسی پر اطلاق کیا جائے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک مسافت سفر یعنی کتنا ڈسٹینس ہو تو جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ تقریباً 80 کلومیٹر 80 کلومیٹر اگر ایک طرف اگر آپ کی دوری ہے سفر ہے تو آپ 80 کلومیٹر سفر میں آپ قصر کر سکتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت صرف فرض پڑھیں گے، سنت کو ترک کر دیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور رات کو سفر کہا ہے۔ ایسے ہی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 برید کے سفر کو قصر میں شمار کرتے تھے، اور جب 4 برید ڈسٹینس والا سفر کرتے تھے تو اس میں وہ روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ 4 برید یہ 16 فرسخ کا ہوتا ہے، اور 16 فرسخ فقہاء نے کہا کہ 80 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ کیا پتا چلا؟ 80 کلومیٹر اگر ہمارا ڈسٹینس ہے تو اس میں ہم قصر کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم روزہ کو ترک کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے لیے چھوڑنا جائز ہے۔ کوئی بھی سفر ہو، گھوڑا ہو، گاڑی ہو، ہوائی جہاز ہو، ٹرین ہو، کشتی ہو، کچھ بھی ہو، 80 کلومیٹر اگر ہے تب دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو یا جو مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ کیا؟ سفر کی حالت میں جو چھوٹا ہے اسے شوال میں یا شوال کے بعد رمضان سے پہلے کسی بھی مہینے میں اس کو پورا کر لینا۔ نمبر 3، حیض و نفاس ہے۔ عورت جب حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو اس پر روزہ نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس بات پر اہل علم کا اجماع کہ ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا حلال نہیں بلکہ حرام، ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا۔ ہاں ان کے لیے بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ضروری اور واجب ہے۔ یہاں پر چند مسئلے ہیں جس کو اگر خواتین ہیں تو غور سے سنیں، اگر نہیں ہیں تو آپ لوگ اپنے گھر کی خواتین کو بتلائیں۔ اس مسئلے میں بڑی غلطی ہوتی ہے ان کے یہاں۔ پہلا مسئلہ اس مسئلے میں یہ ہے، اگر کوئی خاتون ایسی ہے جسے روزہ رکھنے کی حالت میں اگر حیض آ جائے دن کے کسی وقت میں تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو روزے دار ہے، روزہ رکھی ہوئی تھی، دن کے کسی بھی حصے میں حتیٰ کہ سورج غروب ہونے سے اگر 1-2 منٹ پہلے ہی اگر اس کا پیریڈ آ جائے تو اس کا روزہ باطل ہے، اس کا روزہ باطل برباد، اس کے وہ جو روزہ ہے اس کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب اور ضروری۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر عورت کو دن کے کسی حصے میں حیض آ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور یہی موقف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر عورت ایسی ہے جو روزہ رکھی ہوئی تھی، دن کے کسی حصے میں اسے حیض یا نفاس ڈلیوری ہو گیا تو کیا ہوا؟ ایسی عورت کا روزہ باطل ہے، خاص سورج ڈوبنے سے چند منٹ ہی پہلے کیوں نہ ہو، روزہ برباد، اس کا روزہ برباد۔ اگر عورت ہے رحم سے خون منتقل ہو رہا ہے، اس وقت عورتوں کے یہ مسائل ہیں، اس وقت پیٹ میں درد ہوتا ہے یا عورتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا پیریڈ آنے والا ہے
शरीयत ने उस ऐसे मौके पर कहा कि अगर औरत महसूस करती है सूरज गुरूब होने से पहले कि उसका पीरियड आने वाला है, लेकिन खून उसको कब नजर आया? सूरज गुरूब होने के बाद, तो क्या होगा? इसका जायज है उसका रोजा, उसका रोजा दुरुस्त है, उसका रोजा वो दुरुस्त है। मजालिस शहर रमजान, ये इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह की किताब है, सफा नंबर 102 में इस मसले को उन्होंने वजाहत किया। दूसरा मसला ये, दिन के किसी लम्हे में औरत का हैज से पाक होना। कोई औरत ऐसी है जो दिन में किसी वक्त हैज से पाक हो गई, तो अब क्या है उसके लिए? उसके लिए जरूरी ये है कि वो उस दिन के रोजे की कदा करेगी, उस पर कदा वाजिब है। ये नहीं कि अब वो रोजा मान ले अपने दिन को, नहीं। नंबर 3 ये है, रात के किसी लम्हे में हैज से अगर कोई औरत पाक हो जाए तब क्या करे? रात में उसको पता चल गया कि बंद हो गया खून, उसका आना बंद हो गया, अब क्या करे? अगर औरत रात के किसी हिस्से में हैज से पाक हो जाए, गरचे तुलुए फज्र, फज्र से पहले चंद लम्हा ही क्यों ना हो पहले, उस पर उस दिन का रोजा रखना वाजिब है। फज्र से पहले, अजान से पहले उसे पता चल गया कि हमारा सारा मसला साफ है, तो उसके ऊपर वाजिब है कि जो आ रहा है दिन, उस दिन का वो रोजा रखे, चाहे वो गुस्ल की हो या गुस्ल ना की हो, चाहे जानबूझ करके गुस्ल ना की हो या किसी मजबूरी के पेश नजर फज्र से पहले गुस्ल ना कर सकी हो, फिर भी उस औरत के लिए वाजिब है कि वो अगले दिन का रोजा रखे, उसके ऊपर फर्ज है कि रोजा रखे। ये कुछ मसाइल थे जिनका जानना हम तमाम लोगों के लिए जरूरी है। चौथा मसला ये है, अच्छा यहीं पर हम ये जाने, सिर्फ रोजे की कज़ा करनी है, नमाज की कज़ा नहीं करनी है। क्यों? दलील देखिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, कुन्ना नहीर वाला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनुअमरु बिक़ज़ाइस सौमी वला नुअमरु बिक़ज़ाइस सलाह। कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम हायजा हुआ करती थी, तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे के कज़ा करने का हुक्म देते थे, अलबत्ता नमाज के कज़ा करने का हुक्म नहीं देते थे। यहीं पर एक मसला हमको ये मालूम हुआ, शरीयत में क़ज़ाए उमरी का कोई सबूत नहीं है। क़ज़ाए उमरी, नमाज छूटा है मौलवी साहब, नहीं पता, कल हमारे मोहद्दिन साहब मसला पूछ रहे थे, तो क़ज़ाए उमरी का सबूत नहीं है। हाँ, सिर्फ जो फर्ज आपसे छूटा हुआ है रोजा, आप उसके रोजे की कदा करेंगे, नमाज की कदा नहीं। चौथा मसला ये है, हमल व रिज़ाअत। कोई औरत ऐसी है जो हामला, 8वां 9वां महीना उसका चल रहा है, क्या करे? रोजा रखे या ना रखे? कोई औरत ऐसी है जो बच्चे को दूध पिला रही है, रोजा रखे कि ना रखे? ये भी बड़ा अहम मसला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वमन काना मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो बीमार हो या जो मुसाफिर हो उसे क्या करना चाहिए? जो रोजे उसके छूटे हुए हैं वो बाद के दिनों में उसको पूरा करे। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह तुम्हें सख्ती और परेशानी में डालना नहीं चाहता है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम और करम कितना है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला वदअ अनिल मुसाफिर शतर अस्सलाह व अनिल मुसाफिर वल हामिल वल मुर्दि'i सौम बिस्सियाम। ये मुस्नद अहमद की सही रवायत है। ऐसे ही मुस्नद सही इब्न माजा में, सुनन नसई में और कई हदीस की किताबों के अंदर ये रवायत मौजूद है। ये रवायत सही है। क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसाफिर से आधी सलात, आधी नमाज को माफ कर दिया है। 4 रकात वाली नमाज से कितना पढ़ना है? 2 रकात। मगरिब की 3 रकात वाली नमाज है, कितना पढ़ना है? 1.5 रकात, है ना? नहीं जी, तीनों पढ़ना है। मगरिब में कसर नहीं है, ऐसे ही फजर में कसर नहीं है, 4 रकात वाली नमाज में कसर करनी। और क्या कहा? वअनिल मुसाफिर वल हामिल वल मुर्दि'i सौम बिस्सियाम। कहा मुसाफिर और वो औरत जो हमल से हो, वो औरत जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, ऐसी औरत से रोजा को माफ किया है, रुख्सत दिया है कि वो रोजा ना रखे। कौन? मुसाफिर। कौन? हमल वाली औरत। कौन? वो औरत जो बच्चे को दूध पिला रही हो, औरत जो बच्चे को दूध पिला रही हो। लेकिन यहां इस मसले में अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ है कि वो हामला औरत या दूध पिलाने वाली औरत
जिसे रोजा तर्क करने की शरीयत ने इजाजत दी है, क्या वो औरत अपने रोजों की कदा करेगी या रोजा छोड़ने की वजह से मिस्कीन को खाना खिलाएगी या फिदिया देगी? तो इस बारे में अहले इल्म की 3 कौल है। राजे जो मौक़िफ़ है मैं वही बताऊंगा। राजे ये है कि हामिला औरत और दूध पिलाने वाली औरत का मसला मरीज की तरह से। कौन सा मरीज? वो मरीज जिसे शिफायाबी की उम्मीद हो। उसका हुक्म मैंने क्या बतलाया है? उसका हुक्म यह है कि वो रोजे को छोड़ेगा और बाद के दिनों में अपने रोजे को पूरा करेगा, उसका कदा करेगा। उसके ऊपर फिदिया है, उसके ऊपर फिदिया नहीं। ये राजे मौक़िफ़ है। तो पता है चला, अगर कोई औरत ऐसी है जिसे अपने नफ्स पर तकलीफ का डर है या अपने बच्चे के बारे में उससे खदशा है कि अगर मैं रोजे से रहूं दूध नहीं बनेगा, बच्चा बीमार होगा, बच्चे को तकलीफ पहुंच सकती है, तो क्या करे वो औरत? रोजा तोड़ दे। जितना दिन रोजा तोड़ेगी उतना बाद में वो कदा करेगी, उतना बाद में वो कदा करेगी। 5वां आदमी कौन है? वो आदमी जो मैदान जिहाद में हो। मैदान जिहाद में हो तो ऐसे बंदे के लिए भी शरीयत ने इजाजत दी है कि वो रोजा छोड़ दे, वो रोजा तर्क कर दे, वो इफ्तार कर ले। इस सिलसिले में दलील सही मुस्लिम की एक रवायत में है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी कहते हैं, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के एक सफर में थे। वनहनु सियामुन, और हम सब लोग रोजे की हालत में थे। क़ाल फनज़लना मंज़िलन, हम लोग एक जगह पर हम लोगों ने पड़ाव डाला, एक जगह हम रुके। फ़क़ाल रसूलुल्लाह इन्नकुम क़द दनौतुम मिन अदुव्विकुम वल फ़ित्र अक़वा लकुम, कहा है साहबा तुम लोग अपने दुश्मनों से बहुत करीब हो चुके हो। वल फ़ित्र अक़वा लकुम, और तुम्हारा रोजा तोड़ देना तुम्हारे लिए ताकत और कुव्वत का ज्यादा सबब है। फ़कानत रुख़्सतन फ़मिन्ना मन सामा व मिन्ना मन अफ़्तर। अब अल्लाह के रसूल ने यहाँ रुख्सत दे दिया, भाई जो रोजा रखना चाहता है वो रोजा रखे, जो रोजा रखना नहीं चाहता वो रोजा ना तोड़े। कहा गया ये कुछ सहाबा रोजा उन्होंने तोड़ दिया, कुछ सहाबा रोजे की हालत में रहे। तुम मनसिला मंजिलन, फिर एक जगह फिर वहां से आगे बढ़े, एक जगह और उन्होंने पड़ाव डाला। अल्लाह के रसूल ने कहा इन्नकुम मुसब्बिहु अदुव्विकुम वल फ़ित्रु अक़वा लकुम फ़अफ़्तिरू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ लोगो तुम अपने दुश्मन से टकराने वाले हो और तुम्हारा रोजा तोड़ देना तुम्हारे लिए ज्यादा ताकत और कुव्वत का सबब है, लिहाजा तुम लोग रोजा तोड़ दो। यहां हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने, आप तोड़ दीजिए। आप वो ऑप्शन वाला नहीं सिस्टम, अब तोड़ना है आपके लिए। तो इससे पता ही चला मैदान जिहाद में मुजाहिद के लिए रोजा तोड़ना जायज और दुरुस्त है। नंबर 6, वो आदमी जिसे रोजा तोड़ने पर मजबूर कर दिया गया उसके लिए रोजा तोड़ना जायज है, लेकिन शर्त यह है कि उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो। इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, जिसका ईमान दिल के अंदर मजबूत हो और उसे मजबूर किया जा रहा है तो मजबूरी की सूरत में वो रोजा तोड़ सकता है। शरीयत में उसके लिए इजाजत और रुख्सत है। इसी तरीके से एक बाज मसाइल ये भी है, जैसे किसी की जान बचाना हो, कोई दरियाओं में डूब रहा हो और आप उधर से गुजर रहे हो और आपको तैराकी आती है, तो क्या करेंगे आप? शरीयत ने आपको इजाजत दिया है, आप रोजा तोड़िए, कूद करके उसकी जान बचाइए, उसकी जान बचाइए। ऐसे ही कोई जल रहा हो तो आप बचा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, अगर आप रोजा तोड़ दें तो आपके लिए रोजा तोड़ना जायज और दुरुस्त। ये चंद मसाइल थे माजूर लोगों के सिलसिले में। चंद मसाइल का तज़किरा हम और करते हैं, किताब हमारी लंबी है, खत्म हो जाए। अगला मसला है क़ियाम रमजान, यानी तरावीह के अहकाम व मसाइल। तरावीह के अहकाम व मसाइल। क़ियाम रमजान, इसी को सलातुल लैल कहते हैं, इसी को क़ियामुल लैल कहते हैं, इसी को क़ियाम रमजान कहते हैं, इसी को तहज्जुद कहते हैं, इसी को तहज्जुद कहते हैं। सब सारी चीजें एक ही, सारी जो मुख्तलिफ नाम है, एक चीज के कई नाम है, जिसे हम तरावीह ही कहते हैं। सवाल यह पैदा होता है, तरावीह को तरावीह क्यों कहा जाता है? किसी के पास इल्म है इसका? तरावीह को तरावीह क्यों कहा जाता है? तरावीह को तरावीह इसलिए कहा जाता है
क्योंकि हर 2 सलाम यानी 4 रकात के बाद लोग चंद लम्हे राहत और सुकून के लिए बैठ जाते हैं। 4 रकात के बाद थोड़ा देर बैठना चाहिए राहत और सुकून के लिए, यह सलफ से साबित है। ये 4 रकात के बाद बैठते थे, इसीलिए इसका नाम तरावीह रख दिया गया। क्या रख दिया गया? तरावीह। तो यहां इस बात की दलील मौजूद है कि कुरूने ऊला पहले के जमाने में, सहाबे कराम के जमाने में सलातुल लैल जो होती थी लंबी लंबी पढ़ी जाती थी। क्या है? लंबी लंबी कैसे पढ़ी जाती थी? आइए वो रिवायत देख लेते हैं। सही बुखारी की 1147 नंबर की रिवायत। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अन्नहा सुइलत कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाह फी रमज़ान। अम्मा आयशा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में रात की नमाज कैसे पढ़ते थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमजान में तरावीह पढ़ने की क्या सूरत होती थी, कैसे पढ़ते थे, क्या तरीका होता था। तो कहती है फ़क़ालत मा काना रसूलुल्लाह यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रका। अल्लाह के रसूल ने रमजान हो या गैर रमजान, रमजान हो या गैर रमजान, अल्लाह के रसूल ने 11 रकात से ज्यादा तरावीह की, क़ियामुल लैल की, तहज्जुद की नमाज अल्लाह के रसूल ने नहीं पढ़ी है। कैसे पढ़ते थे? युसल्ली अरबअन फला तसअल हुस्निहिन्ना, 2 रकात पढ़ करके सलाम फेरते थे। 4 रकात पढ़ते थे, इतने लंबे कि आप पूछिए मत, इतना लंबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। सुम्मा युसल्ली अरबअन फला तसअल हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, फिर 4 रकात अल्लाह के रसूल पढ़ते थे, वो भी लंबी लंबी करके अल्लाह के रसूल पढ़ते थे। फिर सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर 3 रकात अल्लाह के रसूल पढ़ते थे। क्या? वित्र पढ़ते थे। तो ये पता चला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरावीह पढ़ते थे, बड़ी लंबी लंबी रकातें अल्लाह के रसूल की हुआ करती थी। नहीं, कोई दुआ नहीं, उस दौरान कोई दुआ नहीं पढ़ना है, बस आपको थोड़ा रिलैक्स होना है, कोई दुआ उसमें सब नहीं कोई दुआ है, शायद ऐसा कोई दुआ सबूत नहीं। देखिए बैठना ये इख्तियारी है, बैठना इख्तियारी है। जो आदमी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो चुस्ती और फुर्ती अपने अंदर महसूस कर रहा है तो मत बैठे, पढ़ाए लगातार। अगर थोड़ा थकाव महसूस कर रहा है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। हाँ, तरावीह में नंबर 2 क़ियाम रमजान यानी तरावीह पढ़ने का क्या हुक्म है? तरावीह पढ़ना ये सुन्नत, तरावीह पढ़ना ये सुन्नत है, फर्ज नहीं है। लेकिन हमें सुन्नत को सुन्नत समझ के नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि सुन्नत को सुन्नत समझ करके और तरतीब के साथ उसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सहाबे कराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामुल लैल की बड़ी तरगीब दी और बहुत शौक दिलाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को पढ़ने के लिए। अबू हुरैरा की एक रिवायत के अंदर आता है रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे कराम को क़ियाम रमजान के सिलसिले में ताकीदी हुक्म तो नहीं देते थे कि पढ़ो, बल्कि अल्लाह के रसूल तरगीब देते थे कि पढ़ो, इसका अज्र और सवाब बहुत ज्यादा है। क्या अज्र और सवाब है? अल्लाह के रसूल ने कहा मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो आदमी ईमान की हालत में अज्र व सवाब की उम्मीद रखते हुए, अज्र व सवाब की उम्मीद रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के खातिर, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की गरज और नियत से जो तरावीह पढ़े, क़ियामुल लैल करे, अल्लाह उस बंदे के तमाम गुज़िश्ता गुनाह को माफ कर देता है। कौन से गुनाह? सगीरा गुनाह, कबीरा नहीं। क़ियामुल लैल तहज्जुद की फजीलत क्या है? आइए एक हदीस देखते हैं। सहीह जामे की सही रवायत है, 4079 नंबर की रवायत। अलैकुम बिक़ियामिल लैल, अल्लाह के रसूल ने कहा है लोगों क़ियामुल लैल करते रहो, तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहो। समाज का आलमिया ये है, आज अगर हमारे घर की लड़कियां जो बलूगत तो पहुंच चुकी हैं, अगर वो घर में क़ियामुल लैल, तहज्जुद या तरावीह, तहज्जुद आम दिनों में अगर पढ़ना चाहें तो घर की ख़वातीन कहती हैं तहज्जुद मत पढ़ो, जिन्ना पे चले जाएगा।
सही बात है, आप पूछ लीजिए करो, मत पढ़ो। एक मामला ऐसा पेश हुआ समाज में आपके यहाँ, एक लड़की ने शुरू किया और अल्लाह ताला बंदों के वो आजमाइश में डालता है, इस तरह का मसला हुआ, कुछ उसको डर लगा, घर वालों ने कहा ना, कह ना रही थी कि मत पढ़ो, पढ़ी, हो गया। ये है हमारा ईमान। अल्लाह के रसूल कहते हैं अलैकुम बिक़ियामिल लैल, क़ियामुल लैल करते रहो, व इन्नहु दाबुस्सालिहीन क़ब्लकुम, क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों की आदत रही है। तहज्जुद पढ़ना ये नेक लोगों की आदत। व इन्न क़ियामल लैल क़ुर्बतुन इलल्लाह, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का जरिया है तहज्जुद की नमाज पढ़ना। और सुनो, व मनहाजुन अनिल इस्मी, और गुनाहों से रुकावट का ये सबब है तहज्जुद पढ़ना। व तकफीरुल सय्यात, और गुनाहों की माफी का सबब है। और एक रिवायत के अंदर आता है जिस्मानी बीमारी का इलाज का भी सबब। आप क़ियामुल लैल पढ़िए, क़ियामुल लैल कीजिए, तहज्जुद की नमाज पढ़िए, लेकिन उस लफ्ज के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बहरहाल इतना तो सही है, इतना सही है जो अभी मैंने पढ़ करके आपको बताया। क़ियाम रमजान का वक्त क्या है, किस वक्त हम तरावीह का एहतमाम करेंगे? क़ियाम रमजान का वक्त यानी तरावीह का वक्त सलाते ईशा की नमाज के बाद से सुबह सादिक से पहले तक है, यानी फजर की अजान से पहले तक है। आप इस बीच में कभी भी पढ़ सकते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फीमा बैन अन यफ़रुग़ मिन सलातिल ईशा इलल फज्र 11 रकातन युसल्लिमु बैन कुल्ली रकातैन व युतिरु बिवाहिदतिन। अल्लाह के रसूल ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद से फज्र तक 11 रकात पढ़ा करते थे। हर 2 रकात के दरमियान सलाम फेरते थे और फिर आखिर में 1 रकात वितर पढ़ते थे। कितना हो गया? 11 रकात अल्लाह के रसूल पढ़ते थे। चौथा मसला ये है क़ियाम रमजान की रकात कितनी है, तरावीह की कितनी रकातें हैं? तो तरावीह की मसनून रकात 11 रकात है। जैसा कि अम्मा आयशा की रिवायत में सुना, अल्लाह के रसूल ने रमजान हो या गैर रमजान किसी में भी 11 से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा है। 11 से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा। हाँ, आइए एक रिवायत देख लेते हैं। उसमें उस रिवायत के अंदर मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 रकात नमाज पढ़ते थे। वो सही मुस्लिम की रिवायत। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 13 रकातें नमाज पढ़ा करते थे। इन 13 रकातों में 2 रकातें या तो फजर की सुन्नतें शामिल हैं या क़ियामुल लैल तहज्जुद की नमाज पढ़ने से पहले अल्लाह के रसूल 2 रकात हल्की नमाज पढ़ा करते थे। 2 रकात हल्की नमाज पढ़ा करते थे या वित्र के बाद 2 हल्की रकातें पढ़ने का सबूत है। यहां पर एक मसला और जान लीजिए। लोग हमारे समाज में क्या कहते हैं, आपके यहां तो वित्र को इतिर बोलते हैं ना। इतिर नहीं है, वो वित्र है। वित्र है, वाव से वित्र। वित्र की नमाज के बाद कहते हैं कि मौलवी साहब वित्र के नमाज के बाद फिर अब कोई नमाज नहीं। ऐसा नहीं है, वित्र की नमाज के बाद भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। जहालत का आलम यह है, उलमा ने यहां तक फतवा दे दिया, अगर आप वित्र की नमाज पढ़ करके सोए हैं तो आप 1 रकात वित्र की नमाज पढ़ करके पहली वाली वित्र को काटिए, उसके बाद फिर आप दूसरी नमाज पढ़ सकते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा ला वित्रानि फी लैलतिन वाहिदा, एक रात में 2 वित्र है ही नहीं। इसी गांव में जब मैं शुरू में आया यही मसला है, मैं तो दंग रह गया, कैसे लोग हैं, क्या फतवा दे देते हैं। 1 रकात पढ़ो मौलवी साहब ने कह दिया, अब वो पहले रात ईशा के बाद जो आपने वित्र पढ़ी ना मस्जिद में, उसको पहले क्रॉस करो, काटो, फिर उसके बाद आप कोई सुन्नत पढ़ सकते हो। या तो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र के बाद 2 हल्की रकातें पढ़ने का सबूत है। अब कई रिवायतें, उन रिवायत को हम नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सही मौक़िफ़ इसमें यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज, तरावीह की नमाज, क़ियामुल लैल, सलातुल लैल 11 रकात से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते थे। जो 13 रकात की बात आती है उसमें क्या कहा गया, या तो तरावीह से पहले या क़ियामुल लैल से पहले अल्लाह के रसूल 2 रकात हल्की पढ़ते थे, या फजर की सुन्नतें जो हैं उनको मिला लिया गया तो 11-2
13, तो ये 13 रकातें इस तरह से हो जाती हैं। इस सिलसिले में सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायतें मौजूद हैं। 11 ही पढ़ना, 11 ही पढ़ना। 5वां मसला है सलातुल वित्र, वित्र की नमाज का। तो वित्र का जिक्र तो अभी तो आ चुका है, तो वित्र की नमाज का भी हमें एहतमाम करना चाहिए। कम से कम 1 रकात, ज्यादा से ज्यादा 11 रकात। कैसे 11 रकात? दलील देते हैं, 11 रकात पूरी नमाज को मिलाकर के 11 रकात हो जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, अब आपके ऊपर खदशा ये है कि फजर की अजान होने वाली है, तो क्या कहा गया? आपने पढ़ा है ना 10 रकात, अब आखिर में क्या करना है? 1 रकात आप पढ़ लीजिए, आपकी सारी रकातें क्या हो जाएंगी? वित्र हो जाएंगी। वित्र किसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो। 11 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं ना। हाँ, तो 11 वही वित्र इसको कहते हैं। 11 रकात क्या हो गया? वित्र। तो 1 से 11 रकात, कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 11 रकात। 11 रकात से ज्यादा अल्लाह के रसूल से पढ़ना साबित नहीं है। ये सही जामी की रिवायत। वक्त हमारा ज्यादा हो चुका है, 1-2 मसला बयान करके बात खत्म करते हैं बहुत इख्तिसार के साथ। बाजमात नमाज तरावीह अदा करना तनहा नमाज पढ़ने से अफजल है। एक हो गया। दूसरा मसला, नमाज तरावीह में औरतों का हाजिर होना जायज है। समाज में लोग कहते हैं मौलवी साहब औरतों का मस्जिद में आना फितने का सबब है। मार्केट में जाए वहां फितना नहीं, जहां अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के बंदे आते हैं, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ और तकवा होता है, उनसे फितने का सबब है। लेकिन जहां फितना ही फितना है वहां पर मुसलमानों को फितना नजर नहीं आता, मस्जिद ही में उनको फितना नजर आता है। तो औरतों का मस्जिद के अंदर आना ये जायज है, हाँ, अगर कोई फितने का डर ना हो। फितना ये फितना नहीं है जिसको समाज फितना तस्वुर कर रहा है। अलबत्ता औरतों के लिए घर में नमाज अदा करना क्या है? अफजल है। मस्जिद में पर्दे का एहतमाम है, औरतों का अलग से एंट्री है, अलग से एग्जिट है, तो फिर कोई फितने का मसला नहीं। औरत बाहिजाब होकर के औरत नकाब में अगर आ रही है तो इंशाल्लाह कोई फितना नहीं है। वो आए, मस्जिद में इंतजाम है तो उसको आना चाहिए। अगर दुरुस्त रूप वगैरह का एहतमाम है तो बिल्कुल आना चाहिए। नमाज तरावीह के लिए औरतों का आपस में जमाअत करना जायज है। अगर औरतें घर में कुछ ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं और वो आपस में जमात के साथ तरावीह की नमाज पढ़ना चाहती है तो वो जमात की नमाज पढ़ सकती है। एक मसला, अगर इमाम को कुरान याद नहीं है या याददाश्त इमाम की कमजोर है तो क्या इमाम कुरान को देख करके हाथ में लेकर के तरावीह पढ़ सकता है? जी हाँ, पढ़ा सकता है। कुरान को देख करके हाथ में ले करके तरावीह की नमाज हम पढ़ सकते हैं, क़ियामुल लैल कर सकते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं, मुसाहफ लेकर के। दलील मौजूद है, सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आता है कि उनके गुलाम ज़कवान कुरान करीम को देख करके उन्हें नमाज तरावीह पढ़ाया करते थे। तो सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है और बुखारी की रिवायत में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। कुरान के बाद इस रूए जमीन पर अगर सबसे सही कोई किताब है तो कौन सी किताब है? सही बुखारी। यही मौक़िफ़ शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह का है। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो है कि आलमीन हम तमाम लोगों को रमजान के अहकाम और मसाइल सीख कर उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की हाजिरी को और बैठक को कबूल फरमा। अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को हमारे लिए नजात और मग़फ़िरत का ज़रिया बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमा और रमज़ान मुबारक के महीने को पा करके कसरत के साथ अपनी इबादत और बंदगी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिकुम।